very good afternoon to one and all present here. On behalf of Medicap's Innovation and Incubation Center and e-sale of Medicap's University, I, Dr. Anjali Soni, welcome all of you in today's webinar on Idea Generation Thought Process. First of all, I am pleased to welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Sunil K. Somani, Registrar Dr. Pradimam Yadav, all the deans, all the head of the department, Head of MIIC, Dr. Sarita Kansal, Head of ECEL, Professor Ramjan Singh Sir, all the faculty members, all the participants, and today's speaker, Mr. Saurabh Bilore. Then, Medicaps is one of the brand names in the arena of technical education and is contributing in making Indore an educational hub. Since July 2000, the group is consistently aims at creating an ideal ambience for budding technocrats and helping them to grow like true professionals. In year 2015, we got the approval from UGC to be a self-financed university and admissions for SAM started in 2016. Since then, we have included many courses other than engineering like management, agriculture, pharmacy, design, commerce, science, arts, etc. Since we have created our own brand in the central India, till date more than 12,000 students have been passed out from Medicaps and are working globally and 7,000 students currently studying in various programs. Now about MIIC. Medicap's Innovation and Incubation Center was established in the year 2018 with the aim of provoking innovation and making startups. We believe in setting the stage for energetic and aspiring entrepreneurs. We encourage talents and innovators. An opportunity is provided to the potential change makers of the industry, thereby contributing towards a positive change. MIIC supports technical ventures and lab stage innovations. This paves the path for potential business ideas to reach the market. As we all are here to attend webinar on idea generation thought process, we have with us today's speaker, Professor Saurabh Bilore. Professor Saurabh Bilore is an assistant professor in pharmacy department of Medicaps University. He has 5 years of experience in pharmaceutical industry and academics. Previously was associated with IIST Indore as an assistant professor, was a former formulation scientist. Then he has done M.Pharma in Pharmaceutical from Smriti College of Pharmaceutical Education Indore and has bachelor's in Pharma from MIPS Ujjain. He is certified by Six Sigma Technology and Quality by Design. He is an active member of MIIC. I am so much pleased to invite such a personality to have an insight on idea generation thought process. Over to Professor Saurabh Bilore. Over to you, sir. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for the introduction. Uh, my slide is visible, I think. Yes, sir, it is visible. Okay. Again, thank you so much for the introduction. And from my bottom of heart, I am thankful to our Vice Chancellor, Dr. C.K. Somani, sir, and Registrar, and the thankful to Dr. Sarita Kansal, ma'am, Head in Charge, MIIC Cell, and the department of my dean, Dr. Sanjay Jain, sir, who encouraged me to prepare this presentation. So I'm going to start my talk about the idea generation with some questions. Okay. We are here going to discuss about the idea generation. There are some process which we are aware about. These processes are very well known, and some processes are very proven techniques by which we can generate ideas in bulk quantities, and some are very systematic approaches. We are going here, we are going to discuss here one by one. Okay, that should be this webinar will be the discussion session. So
ones who can feel the discussions and who have any questions or who have better suggestions or examples. There are various technique. I quote many examples, very many live examples. So if someone feel comfortable, then they can raise the hand, and I welcome you. Okay. So as I told you, I'm going to start my presentation with these three basic questions. Okay. So first question I'm asking myself and asking to you also, who can innovate? ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और सबसे भयानक क्वेश्चन में से एक है, हु कैन इनोवेट, हु विल बी द इनोवेटर? ओके, कौन इनोवेट करेगा, कौन इनोवेटर बनेगा? ओके, शायद स्टार्टिंग में हम लोग ये चीज़ें समझते थे, ये चीज़ें बात बात करते थे कि आई वांट टू बी अ इनोवेटर, आई वांट टू बी अ साइंटिस्ट। बट साइंटिस्ट भी अगर हम लोग एक फेज देखते हैं तो दैट साइंटिस्ट आर नॉट completely the innovator, they are not the completely involving in innovation field. Okay, that is my perception. Okay, then who will be the innovator? So we are going to discuss about this question. And the second question is, idea generation is a complex process. So as per my opinion, no. Idea generation is a very simple technique and systematic approach by which you can generate bucket full of ideas, and by applying some techniques or expertise knowledge, you can develop your idea but from idea to a potential business plan. Okay, so first question answer is, anyone can innovate, anyone can generate the ideas. And second answer is the anyone can generate the ideas with the simple manner, and idea generation is a simple technique, not a complex process. But yes, by this I'm also sharing my views on this, the idea generation. Anyone can innovate, but no one want to innovate. Okay, you are agree with me or not, but this is the true of the scenario. Anyone can innovate. They have the sufficient knowledge, they have the sufficient skills to develop idea or innovate, but no one want to innovate because of many reasons. We are going to see these kind of situations also. Then, can I generate ideas? So my answer is yes, you can generate ideas, but there is some techniques, there is some methods by which you can generate the potential ideas, or you can evaluate your ideas. You may have thousands of ideas, but there may be two or three main potentials. Okay, so how can we generate potential ideas which help of the techniques, and how can we take advantage of these techniques? इसमें बहुत सी टेक्निक्स ऐसी होंगी जो आप लोगों ने पहले डिस्कस की होगी किसी से, या फिर कहीं पे सुनी होगी, कहीं पे बात की होगी। अगर आप इस टेक्निक्स में आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो यू आर वेलकम। ओके, so yes, you can innovate. As per me, you can innovate or we can innovate. But कितने लोग इनोवेशन करना चाहते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। कर कोई भी सकता है, बहुत से लोग इंटरेस्टेड भी है, बट कितने करना चाहते हैं, ये हमारे लिए बड़ा क्वेश्चन है। और आज का जो सेशन है, आज का जो वेबिनार है, मैं इसको एज ए ना कि सिर्फ इन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, बट आई वांट टू शो द अलार्मिंग नीड ऑफ द इनोवेशन towards our country, towards our society, towards our personal growth. अगर हम चाहें कि हमारा पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ अपनी सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स को इम्प्रूव करें, और अगर हमारी कंट्री के ग्रोथ में अगर हम लोग पार्टनर एज पार्टिसिपेट करें, तो यू शुड हैव टू इनोवेट। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि देर आर वेरियस फील्ड्स और देर आर वेरियस आइडियाज विच आर फेल्ड इन इनिशियल पीरियड्स, और जो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं बट हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो हमें पुल बैक करते हैं, जो हमें कि वी डोंट वांट एनी इनोवेशन, वी डोंट वांट एनी ideas to start a business, or we don't want any innovation or critical thinking type of things by which uh, we don't want to fail. In short, we don't want to fail in any kind of situation. Okay, तो हम लोग इस पार्ट में भी कुछ बात करने वाले हैं। So my opinion is, yes, you can innovate by what? ठीक है, you have to start your thinking pattern only. You have to start your critical thinking. Okay, uh,
Sir Ralph Waldo quote a very simple quote in which he said that man's mind once stretched by a new idea that will never regain its original dimension. Means what? अगर आपको एक बार क्रिटिकल थिंकिंग का या फिर आइडिया जनरेशन का या इनोवेशन के बारे में बात करने का अगर आपको मौका मिलता है या फिर अगर आप बात करते हैं फोर्सफुली या फिर किसी के मोटिवेशन में आके या फिर आफ्टर दिस वेबिनार, अगर आपको कहीं से भी एक बार भी मौका मिलता है तो दिस थिंग इज वेरी एडिक्टिव. ओके, यू विल बी द एडिक्ट ऑफ दिस थिंग्स. और इस टाइप के एडिक्शन आपके लिए बहुत अच्छे हैं. बिलीव मी, इस टाइप के एडिक्शन आपके पर्सनल ग्रोथ, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ और आपके जो सेटिस्फेक्शन लेवल को इन्हांस करने वाली थिंग्स हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टेप लेना है हम लोगों को. आप लोगों को एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है. और वंस यू स्टार्ट दैट योर माइंड ओनली वांट दैट other examples or other solution of their problems. ठीक है, एक आइडिया के सपोर्ट में बहुत सारे आइडियाज जनरेट किए जाते हैं. हाउ टू जनरेट योर आइडियाज एंड सपोर्टिंग आइडियाज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. ओके, आफ्टर दिस वेबिनार what you are going to take from me, the bullet are what is idea. That is very simple. कोई भी thought process. Then need of idea generation, what is the alarming situation, why we are talking about idea generation, innovation, critical thinking, such kind of terminologies. Okay, ये terminologies हमें क्यों बात करनी चाहिए, हम इन पे webinars क्यों कर रहे हैं, हम लोग इस पे क्यों ऐसा requirement है कि ये सारी चीजें हमसे हमसे कहाँ connected है. Okay, once we feel yes this is the alarming situation और हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, तो our mind is start thinking a critical manner. Okay, then idea generation techniques, we are going to disrupt with techniques. Okay, we have the disrupt techniques and we have the disruptive ideas. I am going to show you the disrupt techniques and the examples. Okay, then we have the idea evaluation. You are going to learn the idea evaluation pattern. Means again I say, if you have 1,000 idea, how you will choose the one or two idea which have the maximum potential. Okay, this is very critical part of your slide. Then the idea film, as per my phenomena, if you want to generate idea, if you want to participate in innovation, but some factor play a role as a hero and some factor play a role as a villain. So who are your villain or who are your hero, that we are discussing here. And motivate, motivate yourself. I am trying to here to motivate, and we are learning from the path makers and we are going to think critically. Okay, I have some brainstorming images and I have to I will complete my webinar with this, no need to overthink. Okay, the first I start with the what is idea. So we know the idea is directly connected to a particular thought. The idea generation or idea is a thought process. Okay, if a potential thought comes in our mind and it's attacking again and again, you will search some solution for that particular idea. अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम अब बार 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 अटैक करेगी, तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगेंगे. ओके, आप कुछ टाइम इग्नोर कर सकते हैं बट बार बार नहीं कर पाएंगे. ओके, देन इफ अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स निकालते हैं, दैट विल स्टार्ट योर आइडिया जनरेशन. अगर उस टेक्निक से रिलेटेड कोई डिवाइस, कोई मेथड, कोई क्रिएटिव थॉट्स या फिर कोई मशीनरीज इन्वॉल्व है, दैट विल लीड्स टू योर इनोवेशन. ओके, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपने एक आइडिया का जनरेशन किया है और उस आइडिया जनरेशन के बेसिस पे आपने एक इनोवेशन किया है. ओके, और ये इनोवेशन या ये आइडिया आपको एक पोटेंशियल बिजनेस देने के लिए या फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. ओके, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है यहाँ पे कि जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट से अगर इस बारे में बात किया, उन लोगों ने बोला मुझे कि सर इज दिस टॉपिक इज रियली रिलेवेंट टू आवर मीन्स, क्या ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, क्या ये टेक्निकल टर्म से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्या ये टॉपिक फार्मा फील्ड से या इंजीनियरिंग फील्ड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है. सो
पहले मैंने थोड़ी देर सोचा और मैंने बोला कि यस, क्योंकि रिलेटेड क्यों है मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को भी। क्योंकि हम लोग अभी तक ये सोचते आ रहे हैं कि आइडिया जनरेशन या फिर इनोवेशन मैनेजमेंट या फिर क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ किसी बिजनेस आइडियाज को ओवरकम करने के लिए या फिर किसी बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए लगाए जाते हैं। नो, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे आपके आइडिया या इनोवेशन की बात ना होती हो। ओके, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जिस भी फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में अगर हम लोग इनोवेशन की बात नहीं करेंगे, आइडियाज़ की बात नहीं करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग की बात नहीं करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की बात नहीं करेंगे, ट्रबल शूटिंग की बात नहीं करेंगे, तो हम लोगों का सस्टेन रहना बड़ा मुश्किल है। ओके, एक 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 वर्ड जो कि बहुत ज़्यादा अभी सुनने में आ रहा है, वी आर रिप्लेसेबल। ओके, ह्यूमन बींग्स आर रिप्लेसेबल। सो ये बहुत ही कह सकते हैं बिटर ट्रूथ है हम लोगों के लिए कि वी आर रिप्लेसेबल एट एनी मैनर। हमें कोई भी आगे कभी भी रिप्लेस कर जाएगा। ओके, इफ यू डोंट वांट टू बी रिप्लेसेबल देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग क्रिटिकल। ओके, और क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट ही आएगा आपका आइडिया एंड इनोवेशन पार्ट्स। ओके, then as per me there are some ideas which change the world completely. Okay, if you are going to review some article or if you search directly on Google what are the innovation which change the world completely, then that there will be the 50-70 innovation inventions or innovations which change the world completely. Like start from fire, invention of farming, invention of food processing, and water purification systems, and binder material which bind the stones. Then there are various examples are there actually, but as per me there are three main invention which change the world completely. I tried to compile all the 50-70 invention in these threes. Okay, the first one is the invention of writing. You agree with me or not? But why I am thinking this is the main invention, because we are transferring our knowledge to and we are transferring our knowledge to the successors. Okay, we are transferring the ideas, we are transferring the innovation from our ancient knowledge to successors. Okay, if you want to communicate, the basic need is to writing. Okay, and that writing is also the very common for all type of technology. If you are going to code something, if you want to go to machine learning, if you want some software development, the writing is the basics. Okay, so I want this invention is main. Okay, as per the and I think that I personally think that invention of writing is completely changed the world. Okay, then my next invention which I compiled here, that invention of medical science. Okay, थोड़े समय पहले की बात करें हम लोग तो एट अ टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर ह्यूमन एज जो है वो 55 से 60 ईयर्स के बीच में एक एवरेज एज मानी जाती थी, बिकॉज देर आर वेरियस माइक्रोबियल इन्फेक्शंस और स्प्रेडेबल डिसीज बाय विच 55 और 60s आर द मैक्सिमम एज ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। ओके, अगर हमारे पास इतना कम समय रहता जिसमें हम लोगों को एक लाइफ स्पान करना है, क्वालिटी लाइफ स्पान करना है, जिसमें हमको एक क्वालिटी लाइफ स्पान करना है, तो शायद हम लोग आज यहाँ पे बैठ के इस तरह की बातें नहीं कर रहे होते। ओके, हम लोग इस तरह के सेमिनार अटेंड नहीं कर रहे होते। हमारा फोकस होता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और जितना हो सके हम लोग अपना वेल्थ क्रिएशन कर लें, जितना हो सके अपने फैमिली से मिल लें। हम लोग यहाँ पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते अगर हमारा लाइफ स्पान या फिर हमारा जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं बनाया गया होता बाय द इन्वेंशन ऑफ मेडिकल साइंस। बहुत सारे इन्वेंशंस हैं, जैसे आयुर्वेदा सिस्टम हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहाँ से एंशियंट मेडिसिन सिस्टम है, सबसे पुराना मेडिसिन सिस्टम है, यहाँ से इन्वेंशन हुआ और बाद में अभी हम लोग करंटली बात कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरीज की। My third quote is here, that is technical invention and developments. So obviously invention of assembly lines enhance the productivity, invention of computer enhance the lifestyle and computing powers and many more things. Then IT development, data sciences, virtual realities, these are the invention which I cover in the technical invention and developments.
these are completely change the world। ओके, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, हम लोग इसकी बातें क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये इन्वेंशन भी किसी ना किसी के एक सिंगल आइडिया पे जनरेट हुए हैं। ओके, किसी ने सोचा होगा कि मैं अपने सक्सेसर्स के लिए, मैं अपने पोतों के लिए, नाती के लिए कुछ तो नॉलेज छोड़ के जाना चाहता हूँ, देन ही और शी स्टार्ट पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ that, and then they start the sculpturing and all। okay, then at a medical science किसी ने सोचा होगा कि that fruit or that part of the leaves will helpful to enhance the living experience, then the medical science will develop, and someone think about the invention of the technological and the technological development, and they start this technological invention and developments। okay, then why this idea generation is very much required for us, मीन्स क्यों हमें इस आइडिया जनरेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं आप लोगों को बुलेट पॉइंट्स में बताऊं तो आइडिया जनरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ योर सोसाइटी। ओके, कोई आइडिया या इनोवेशन होता है, वो आपके प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इन्हांस करता है, या फिर कोई एक प्रोडक्ट अगर इनोवेट होता है तो दैट विल गिव द सम गुड लाइफस्टाइल टू यू, and that will leads to your that will produce the capital, and that capital is responsible for the economic growth। okay, एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, वी आर ऑल टॉकिंग द आइडिया एंड इनोवेशन, बट वी हैव इन आवर माइंड आइडिया एंड इनोवेशन रिजल्ट्स टू अ प्रोडक्ट। ओके, आइडिया और इनोवेशन सिर्फ एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मैं नहीं मानता। ठीक है, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आइडिया और इनोवेशन को मैं सबसे ज़्यादा रिलेट करना चाहता हूँ प्रोसेस से। नो वन इज टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस। ओके, हम लोगों को प्रोसेस के बारे में कुछ बात नहीं करना है, जो चल रहा है वो चल रहा है। If we are talking about process, then we can shift this thing or that thing, then your manager or your senior will do, oh, we don't have such times for this kind of innovation in the process। okay, if you have free time, then I will assign some work to you। okay, no one is talking about the process innovations, but process innovations minimize the waste and increase the productivity that will directly leads to the economic growth। ओके, सो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस ग्रोथ वाला पॉइंट। होप आप लोगों का भी शायद इस बारे में सोचना हो, बट आप जिससे भी बात करें इसके बारे में, किसी से ही बात करें, प्रोसेस इनोवेशन इज वेरी लेस इन आवर कंट्री एक्चुअली। ठीक है, हम लोग तो कंट्री की बात करें, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं उनकी बात ना करें, हमारी कंट्री में प्रोसेस इनोवेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, बट दैट इज रिक्वायरमेंट, दैट इज द अलार्मिंग नीड। क्यों है अलार्मिंग नीड? जैसे मैंने आपको क्लियर किया कि प्रोसेस इनोवेशन या फिर आइडिया जनरेशन लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, ये मेरे पास फैक्ट्स हैं, और इन फैक्ट्स के बेसिस पे, जो ये फैक्ट्स मैंने रेफरेंस लिए है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो से, और यहाँ से मुझे क्लियर होता है कि वाई वी आर लैकिंग, और हाउ मच वी आर लैकिंग इन दिस इनोवेशन फील्ड। सो हम लोग जानते हैं कि इनोवेशन हो या फिर कोई आइडिया हो, कोई प्रोडक्ट हो, वी कैन डू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वी कैन पेटेंट अवर प्रोडक्ट और वी कैन पेटेंट अवर प्रोसेस। ओके, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अकॉर्डिंग अभी तक जितने भी पेटेंट्स हुए हैं उसमें 22% टोटल पेटेंट्स हैं चाइना के, एंड वी आर गोइंग टू कॉम्पीट। हम लोग अभी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कॉम्पीट करने की, इंडिया इज गोइंग टू कॉम्पीट विद चाइना, बट इधर अगर आप देखेंगे, इफ यू आर सीन हियर, दैट इज टोटल 22% ऑफ पेटेंट्स, लाइक मीन्स द नंबर इज 58,990, एंड वी आर हियर इन 14th रैंक, 0.77%। okay, only 2053 patent we applied in WIPO, that is all kind of patent, and we are not going to search about the process patents, we are not worry about the process patents। okay, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। सॉरी अगर मैं इस टाइप का कुछ वर्ड यूज कर रहा हूं तो, बट दैट इज अलार्मिंग नीड। okay, if you want to compete, so you have to think how you can compete।
एक बहुत ही अच्छा कोट होता है कि इफ यू वांट टू सर्व द कंट्री, तो आपको आपको कहीं पे आर्मी में होना रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई डॉक्टर होना रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जिस भी फील्ड में हैं वहाँ पे इनोवेशन कर सकते हैं। इनोवेशन के साथ में आप इकोनॉमिक ग्रोथ दे सकते हैं। दैट इज द बेसिक नीड। आप इकोनॉमिक ग्रोथ देंगे, आपकी आपकी कंट्री के जीडीपी अगर इन्हांस करते हैं, दैट इज द बेसिक नीड और दैट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू योर सोसाइटी और योर कंट्री। ठीक है, अब ये बड़ी बड़ी बातें हो गई। ओके, समवन रेज्ड हैंड। सर कैन यू अनम्यूट हिम? समवन रेज्ड हैंड एक्चुअली। ओके देन। Sir, we will take the questions at the end. ओके That मैम। will be better, I guess, ओके ओके if you ओके feel like. Okay. Okay, so this is the alarming situation which I want to tell you। मीन्स अगर 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 आप लोग कुछ रियली चाहते हैं कि इनोवेशन सिर्फ आपका भला करे, आपकी सोसाइटी का भला करे, आपकी कंट्री का भला करे, तो आपको इस मैटर में सोचना रिक्वायर्ड है। अगर आप इस वाले कोट पे काम करते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जब तक आवश्यकता नहीं पड़ेगी आविष्कार नहीं करेंगे, तो आज आवश्यकता है, आज नीड है, और बहुत ही अलार्मिंग नीड है। ओके, रीजन चाइना इज अ वर्ल्ड फैक्ट्री। कुछ फैक्ट्स दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि वाई चाइना इज प्रोड्यूसिंग चीप मैन्युफैक्चरिंग, चाइना इज प्रोड्यूसिंग चीप प्रोडक्ट्स। ऐसा क्या है चाइना के पास जो इतने कम प्राइस में, इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा बल्क प्रोड्यूस कर देता है? ओके, सो पहले तो मैं आप लोगों को इसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करना चाहूँगा कि जब हम लोग स्टार्ट किए थे बायकॉट चाइना प्रोडक्ट, ओके, then someone will share this news where इंडिया में बहुत ही हाई डिमांड पे चल रहा है बॉयकॉट चाइना के एसेसरीज जो कि चाइना खुद प्रोड्यूस कर रहा है। आई डोंट नो कि ये कितना सही है कितना गलत है। हो सकता है कि फेक न्यूज़ हो, कुछ इसके बाद में आर्टिकल्स आए कि ये फेक न्यूज़ है, बट जो एक्चुअल सिचुएशन है वो इसके काफ़ी क्लोज है। ओके, मीन्स चाइना ने जो डिपेंडेबिलिटी हम जो हमारी जो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बिल्ड हुई है, उसको क्लोज करना, उसको क्रॉस करना, उसको ओवरकम करना शायद इतना ही मुश्किल है जितना इस न्यूज़ को फेक डिमांड करना है। ओके, देन आई हैव सम रीजंस व्हाई चाइना इज वर्ल्ड फैक्ट्री। रिवर्स इंजीनियरिंग, वी ऑल नो द टर्म। जिसको नहीं पता मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। एज एन एजुकेटर मेरा काम है ओके जो टर्म्स है उनको सिंप्लीफाई करना, तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ वन वर्ड्स में। हम बनाते हैं ए से लेके बी जिससे होता है सी। ओके, ए प्लस बी इक्वल टू सी, सी इज आवर प्रोडक्ट। द रिवर्स इंजीनियरिंग से दैट टेक द सी and break into A and B. Try to search what is in the C. Okay, मीन्स अगर आपको एक मोबाइल फ़ोन बनाना है जो कि यूएस में है, और उससे सिमिलर मोबाइल फ़ोन अगर आपको डेवलप करना है, मोबाइल फ़ोन लाओ, उसको ब्रेक करो, उसके कंपोनेंट सर्च करो, कौन कौन से कंपोनेंट इन्होंने लगाए हैं, देन ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विथ चीप मटेरियल्स। ठीक है, दैट इज द काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग दे आर यूजिंग। स्केलेबिलिटी जहाँ जहाँ पे स्केलेबिलिटी का एनहांसमेंट होता है, स्केलेबिलिटी मीन्स बल्क प्रोडक्शन। ओके, अगर जहाँ पे आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे, ये सबसे बड़ा ये इनके साथ एडवांटेज है क्योंकि ये प्रोसेस पे काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन करते हैं, प्रोसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप प्रोसेस के ऊपर ध्यान देंगे तो प्रोसेस में आपका स्केलेबिलिटी बढ़ेगा, आपका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे कम प्राइस में आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है। ओके, देन डिसिप्लिन वर्कफोर्स। अभी ज़्यादा तो मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, बट वी हैव सर्टन माइंडसेट कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा वो मुझे निकाल देगा, निकल जाऊँगा, बट उसके साथ काम नहीं करूँगा। ओके, दिस काइंड ऑफ माइंडसेट वी हैव। सो और अभी की सिचुएशन में तो ये और बढ़ता जा रहा है, जिसको हम लोग जिसमें टॉलरेंस वाली जो प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज़ में वो काफ़ी कम हो रही है। ओके, और उसके कारण से हमें एक डिसिप्लिन वर्कफोर्स नहीं मिल पाता है, एक काम में इंटरेस्ट लेने वाला वर्कफोर्स नहीं मिल पाता है। बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं चाइना के पास जो कमर्शलाइजेशन को प्रमोट करती हैं। रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोगों को कोई प्रोडक्ट अगर बनाना है तो रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करना है।
इंपोर्ट करके अगर हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं कोई रॉ मटेरियल तो उसका कॉस्ट, इंपोर्ट का कॉस्ट एंड सारा चीज़ें मिला के हम जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका कॉस्ट, ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा आएगा। अगर रॉ मटेरियल भी हम ही बनाए, प्रोडक्ट भी हम ही बनाए, पैकेजिंग मटेरियल भी हम ही बनाए, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट चीप मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। प्रोसेस इनोवेशन जो कि डायरेक्ट रिलेटेड है आपके स्केलेबिलिटी के, प्रोसेस पे काम करेंगे बेनिफिट होगा, और वो बेनिफिट आपके साथ साथ आपके कस्टमर तक भी जाएगा। देन नाउ वी कम्स टू हाउ टू जनरेट आइडिया। ओके, अभी इतनी सारी बातें हो गई, हमें पता चल गया कि आइडियाज़ को जनरेट करना चाहिए, कौन कौन से आइडियाज़ हैं जो वर्ल्ड को चेंज किए हैं। देन अलार्मिंग न्यूज़ भी पता चल गई कि आप लोगों को आइडिया तो जनरेट करना ही पड़ेंगे। ओके, तो कैसे आइडिया को जनरेट किया जाए उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ प्रूवन टेक्निक्स और मेथड्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जैसे है डिस्टरप्ट। ओके, डिस्टरप्ट को मैं स्पेल कर रहा हूँ DISRUPT। डिस्टरप्ट ये वाला डिस्टरप्ट नहीं है जो हम जैसे डिस्ट्रप्टिव थिंग्स आर डिफरेंट एंड डिस्टर्ब टेक्निक इज डिफरेंट। So I'm going to discuss with this disrupt technique, then brainstorming, mind maps and 5Q techniques। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है। आपको सिर्फ एक माइंडसेट बनाने की रिक्वायरमेंट है और आपको गूगल में सर्च करना है आइडिया जनरेशन टेक्निक्स और मेथड टू इवैल्यूएशन ऑफ आइडियाज और हाउ टू जनरेट आइडियाज, एंड देयर आर थाउजेंड ऑफ आर्टिकल्स आर देयर इन द गूगल। ओके, बस हमको सही कंटेंट देना है और एक माइंडसेट के साथ में स्टार्ट करना है। Okay, so I'm going to start here disrupt technique. In disrupt, D is for derive, I include, S for separate, R for repurpose, U for unite, P for personalize, and T for transform. Okay, and what is the disruptive idea? Disruptive idea anyone can share, ma'am। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्टिविटी के बारे में सोच रहा हूँ कि कोई अगर चाहे तो मुझे आंसर कर सकता है। व्हाट इज द डिस्ट्रप्टिव आइडिया? व्हाट इज द डिस्ट्रप्टिव आइडिया अकॉर्डिंग टू यू पीपल्स? क्या हो सकता है कोई डिस्ट्रप्टिव आइडिया? एनीवन कैन रेज हैंड। किसी को आइडिया है व्हाट इज द डिस्ट्रप्टिव थिंग्स? To get the more benefit of this webinar, you should come out. Yes, The session should be interactive, then only you will get the benefit of it. ओके, कोई तो बताए मुझे डिस्ट्रप्टिव आइडियाज क्या होता है? डिस्ट्रप्टिव आइडियाज मीन्स आपने सुना होगा ये वर्ड, काफी सुना हुआ है। हर्षित जैन। बाबू क्या जलेबी मतलब नहीं हो पा रहा, आई थिंक। Am I audible? Yes sir, please sir। In my opinion, anything which make the process simpler is the disruptive idea. Very close to disruptive idea sir, but here I am talking about the disruption। Okay, okay, that is my thought. You continue, please. Thank you sir, very close। Here I am talking about disruption means if you are seeing this image, तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 5 और कॉम्पिटिशन्स है, 4 और कॉम्पिटिशन्स है और एक आइडिया है जो लाइट है। ओके, एक आइडिया के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। डिस्ट्रप्टिव आइडियाज और दोस आइडियाज which completely change the scenario of market। ओके, मीन्स ऐसा आइडिया जो मार्केट में आने के बाद में आपके कॉम्पिटिटर्स को फिर से मार्केट में लाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम कॉज करता है, या फिर मार्केट में एक तरह से मार्केट में एक टाइप का ब्रिज क्रिएट कर देता है। ओके, फॉर द एग्जांपल जियो मार्केट। ओके, जियो ने कुछ ऐसा आइडियाज लगाया, कुछ ऐसा टेक्निक्स यूज किया, उसके बाद में बाकी सारे जो टेलीकॉम कंपनीज थी वो इतना जल्दी मार्केट कैप्चर नहीं कर पाए, और आज भी वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं किसी तरह से मार्केट को फिर से कैप्चर किया जाए। ओके, so these disruptive ideas I'm going to explain one by one। Okay, D is for derive। Derive means you have to derive something from existing products।
कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अगर आपके पास है या मार्केट में कोई पहले से ही काफ़ी सक्सेसफुल आइडिया है, तो आप उसमें से कुछ डिराइव कर सकते हैं. एज पर मी, एज पर माई फिलोसफी, नेचर इज द बेस्ट मोटिवेटर. आप नेचर को एज ए कंसिडर कीजिए रेफरेंस, और उसके बेसिस पे कुछ ऐसे आइडियाज जनरेट कीजिए जिसकी रिक्वायरमेंट हो आपके कस्टमर्स को. ओके, फॉर द एग्जांपल, वाटर इज अ नेचुरल सोर्स. Water comes from natural source, but we are selling million water bottles every day. ठीक है. अगर मैं शायद सही हूँ तो कोई बॉटल तो 70 रुपीज, 80 रुपीज या 100 रुपीज पर लीटर या फिर 200 रुपीज पर लीटर भी अवेलेबल है मार्केट में, और उनका मार्केट भी है. ठीक है, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, बट दे आर मोटिवेट फ्रॉम द नेचर. Second product is Dead Sea Mud Mask. We already knows that कि मुल्तानी मिट्टी लगाने से चेहरे में चमक आ जाती है ना. हम लोग वहाँ पे जाएंगे नहीं, वहाँ से मिट्टी लाएंगे नहीं, बट कोई हमें ऐसा करके दे दे तो हम लोग बिल्कुल परचेस कर लेंगे Dead Sea Mud Mask. ओके, एक प्रोडक्ट है जिसका सिर्फ प्रेजेंटेशन है, अंदर का कंटेंट आपको भी पता था. ओके, देन this is very new requirement. We have the oxygen cylinder, ready to carry oxygen cylinders. Okay, oxygen is free, but they are doing the oxygen cylinders, or they are packing the fresh oxygen. They are saying the fresh oxygen in the cylinder is available. Okay, some more examples are this company's Royal Grass is selling grass. Okay, that is the artificial grass they are going to sell. Okay, ये हम लोगों को घास भी बेच दे रहे हैं, मिट्टी भी बेच दे रहे हैं, जो हमारे आसपास अवेलेबल है वो सब कुछ बेच दे रहे हैं. तो why we are not motivating from these peoples. ठीक है. एक और जो एग्जांपल है जो काफी ज्यादा फेमस है हम लोगों के एरियाज में, काउडंग केक. ओके, काउडंग केक इज मार्केट में अवेलेबल है, बट इसको कमर्शलाइज करने के लिए इसको प्रॉपर पैकिंग किया हुआ है, एंड इसके स्टिकर लगाया हुआ है कि वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कंडास. ओके, कंडा बोलते हैं इसको मालवा में. ठीक है, सो वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कंडा इन द वर्ल्ड. ओके, इस टाइप से ये लोग मार्केट कर रहे हैं, और काफी अच्छा इन लोगों का रेवेन्यू रेशंस भी है. ओके, देन द सेकंड इज इंक्लूड का मीन्स जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जिसको भी आप एग्जिस्टिंग बिजनेस मानते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्व कर लीजिए, अपनी तरफ से इन्वॉल्व करके उसको एज ए आप इनोवेटर प्रोडक्ट कंसीडर कर सकते हैं. फॉर द एग्जांपल, अगर आपका कोई चिप्स फैक्ट्री है और अगर आप प्रिंगल बिजनेस में हैं, तो प्रिंगल बिजनेस ने क्या किया, ईच और एवरी चिप्स पे प्रिंटिंग स्टार्ट किया. ये जो प्रिंटिंग है ये हर एक चिप्स पे अलग अलग होगा. ये एक इनोवेशन से बहुत छोटा सा इनोवेशन है कि इन लोगों ने हर एक चिप्स पे प्रिंटिंग स्टार्ट कर दिया. ओके, और इस छोटे से इनोवेशन के कारण इनकी सेल्स 10 टाइम्स बढ़ गई. लिक्विड ORS हमारे पास पहले, आज से अगर बात किया जाए 5 साल 6 साल 7 साल पहले, तो लिक्विड ORS करके कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता था हमारे पास. ओके, देन वी नीड, अगर हम लोगों को ORS कंज्यूम करना है तो वी नीड सम फ्रेश वाटर, वी नीड सम बॉटल और ग्लास और कप समथिंग. सो ORS लिक्विड का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, जो कि स्टार्ट किया जगदालय फार्मा में, और इस आइडिया को, इस पेटेंट को परचेस किया वर्ल्ड की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी और कॉस्मेटिक कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने 740 करोड़ में. आइडिया सिंपल था, बट 740 करोड़ में गया है. एंड दिस इज द डिस्ट्रप्टिव मैन. दिस मैन डिस्टर्ब द फुल टेलीकॉम एंड टेलीकॉम कॉम्पिटिटर्स. ओके, जियो ने अपना फ्री और अनलिमिटेड जियो स्टार्ट किया, अनलिमिटेड डेटा स्टार्ट किया, एंड बाकी लोग, इन लोगों ने जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था कुछ अलग नहीं किया. तो हमको यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन मिलता है कि एक बार आइडिया जनरेट करने के बाद में, एक बार बिजनेस को सेटअप करने के बाद में, कंटिन्यूस कंपटीशन में रहने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, कंटिन्यूस प्रोसेसिंग में भी आपको इनोवेशन करना पड़ेंगे. नेक्स्ट इज, दिस इज ऑल्सो द एग्जिस्टिंग बिजनेस. कार्स और ऑटोमोबाइल्स बहुत ही पुराना बिजनेस चला आ रहा है, बट एमजे हेक्टर ने अपनी टेक्नोलॉजी में इंक्लूड किया इंटरनेट इनसाइड द कार विच विल टॉक टू यू. कार आपसे बात करेगी. घर जाना है, मार्केट जाना है, रेडियो ऑन कर दो, कॉल लगा दो. दैट इज द टेक्नोलॉजी, एंड that included this internet inside in the existing market. और उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं एमजे हेक्टर का ब्रांड नेम
और mg हेक्टर की सेल्स। ये आप सभी लोगों को पता है। ओके, ये तो पता है हम लोगों को, ये तो बता सकते हैं हम लोग। प्लीज कोई बताइए इसके बारे में, ये क्या है, ये मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ इसमें? विदुषी शर्मा। सर कोलगेट। एंड व्हाट सर इंक्लूडेड? कोलगेट। क्या आपके कोलगेट में नमक के वाला वो ऐड आता था एक टीवी में? वेरी गुड। सर सॉल्ट। यस, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? यस Included सर। only salt. They included salt in their product and they start a campaigning, क्या आपके प्रोडक्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। ओके, और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज से अगर 50 साल पहले आज के टाइम में भी शायद कुछ कई जगह पे होता होगा, तो जो राख होती है या फिर जो सॉल्ट होता है, इसको मिला के पहले टीथ क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता था। They included the ancient knowledge in their product and they started the innovation and they started the campaign of the क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। इतना चला, ये एक टाइप से बम्बार्डिंग है, एडवर्टाइजमेंट की बम्बार्डिंग है। इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आता है, पर छोड़ो यार, सामने दिखेगा तो नमक वाला ही टूथपेस्ट ले आएंगे। ओके, तो इस टाइप से इन लोगों ने मार्केटिंग किया और इनके प्रोडक्ट की सेल्स भी काफी अच्छी हुई। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एस, दैट इज सेपरेट। ओके, ये कुछ थोड़ा सा टेक्निकली जाता है, जिसमें हम लोग जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें से मेन कंटेंट, मेन हीरो को बाहर निकाल लो और उस हीरो को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना आइडिया जनरेट कर लो, अपना इनोवेशन बना लीजिए। कैसे? जैसे पिंटरेस्ट, फेसबुक पे प्रोफाइल फोटोज या फिर बहुत सारे लैंडस्केप फोटोज ये काफ़ी पॉपुलर हुए थे। उसके लिए पिंटरेस्ट ने फिर सिर्फ काम किया है कि हम सिर्फ ओनली फोटोज ही प्रोवाइड करेंगे। देन पिंटरेस्ट स्टार्ट हुआ एंड पिंटरेस्ट अभी काफ़ी पॉपुलर है। देन पिंटरेस्ट ने अभी स्टार्ट किया है कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी सजेस्ट करता है, कुछ मीम्स वगैरह भी सजेस्ट करता है, बट ये आइडिया लिया था इसने फेसबुक से। ओके, फेसबुक में फोटोज वीडियोस बहुत आते थे, तो इसने सिर्फ फोटो आइडिया लिया और अपना पिंटरेस्ट स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम भी सेम ही है, इंस्टाग्राम ने ओनली फोटोज लिए, ठीक है, जिसमें कम वर्ड्स में हम लोग किसी की फोटोज को डिस्क्राइब कर सकते थे, जिसमें हम लोगों ने हैशटैग ऑपरेशन स्टार्ट किया और हैशटैग से ये स्टार्ट हो गया आपका इंस्टाग्राम। दैट इज ऑल्सो द हीरो। हीरो कौन था इसमें भी? फोटो, जो कि लिया गया था कहाँ से? फेसबुक से। बिग बास्केट बहुत ही पॉपुलर ब्रांड हुआ हमारे इंडिया में। बाकी लोग बहुत कुछ बेच रहे थे, सभी मार्केट बेच रहे थे, आपको जो चाहिए वो अवेलेबल करवा देंगे, बट बिग बास्केट ने स्टार्ट किया, वी आर सेलिंग ओनली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है, बाद में इसने भी सब कुछ स्टार्ट किया, ग्रोसरी स्टार्ट किया, बट दैट इनिशियल आइडिया वाज वी आर सेलिंग ओनली फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज रीपर्पस। रीपर्पस का मीन है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या फिर जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं, उसका कोई नया पर्पस ढूंढ निकालिए। ठीक है, नया पर्पस ढूंढ निकालिए। एग्जांपल से समझ में आएगा, स्लाइड शेयर। स्लाइड शेयर पहले एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया था और इन लोगों ने स्टार्ट किया था कि वी विल शेयर ओनली द एजुकेशन कंटेंट विद द फॉर्म ऑफ वीडियो, एजुकेशनल वीडियोस। ओके, बट बाद में इन लोगों ने स्टार्ट किया स्लाइड्स और इन लोगों ने मर्ज किया लिंक्डइन से, जो कि प्रोफेशनल वेबसाइट है, इन लोगों से मर्ज किया और स्लाइड शेयर फिर अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ। बहुत से लोग जानते हैं वी आर टेकिंग स्प्रिन फॉर द हेडेक, फॉर द पेन्स, बट वी ऑल्सो नोट that aspirin is also worked in heart attack conditions, that is dilating your blood vessels। ठीक है, तो ये जो इसमें क्या किया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ये हो रहा है किसके लिए? इसको हम लोग यूज कर रहे हैं हेडेक के लिए, बट इसका रिपर्पस कर दिया हम लोगों ने, दैट इज ऑल्सो यूजफुल इन दी हार्ट अटैक ऑल्सो। तो ये क्लेम करने के बाद में एस्प्रिन का खुद का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब जहाँ पे पहले हेडेक के लिए कोई पेशेंट लेके जाता था, उसके साथ में कुछ पेशेंट्स और जाके लेके जाने लगे कि बाय चांस इफ वी हैव हार्ट अटैक कंडीशन, तो हम लोग इसको पहले से ही अपने घर में लेके रख लेते हैं। ओके, एस्प्रिन का हमारे यहाँ पे ब्रांड डिस्प्रिन चलता है। देन सेकंड इज यूनाइट। यू इज फॉर यूनाइट। कंबाइन कर दो कोई दो प्रोडक्ट को और बना दो कोई तीसरा प्रोडक्ट। मोबाइल स्क्रीन एंड लैपटॉप कीबोर्ड्स, इस टाइप के मोबाइल सोनी इरिक्सन से लॉन्च किए थे और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे उस टाइम पे। सूटकेस विद ट्रॉली, ट्रॉली को हम लोगों ने कंबाइन किया सूटकेस से, और इस टाइप के अब
अब शायद ही कोई ऐसा ट्रॉली बैग होगा, शायद ही कोई ऐसा सूटकेस होगा जिसमें इस टाइप के व्हील्स ना लगे हों या फिर इस टाइप का हैंडल ना हो। Next is camera with scanner, camera with the projector, pencil with rubber. You have to combine two products to innovate new products. Shampoo with conditioner. शैम्पू खरीदोगे तो कंडीशनर फ्री आएगा, कंडीशनर खरीदोगे तो शैम्पू फ्री आएगा. You have to combine two products to enhance the experience of your customer, and you will have a great idea. Then personalize. कस्टमर की पर्सनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कुछ इनोवेट कीजिए. पर्सनल भी कुछ पर्सन जो होंगे, जो कस्टमर होंगे, वो भी खुश रहेंगे और आपकी सेल्स भी काफ़ी अच्छी जाएंगी और आपका इनोवेशन लोगों को बहुत पसंद आएगा. पर्सनलाइज एग्जांपल्स लाइक ये जो पिलोज होते हैं, इसमें हम लोग फोटोग्राफ्स वगैरह, खुद के फोटोग्राफ्स वगैरह प्रिंट करवा लेते हैं. लोगों को अच्छा लगता है. दैट इज डायरेक्टली टच द फीलिंग ऑफ दैट पर्सन. लोगों की फीलिंग्स के साथ जब आप जुड़ते हैं, अपने प्रोडक्ट को अगर फीलिंग के साथ में लिंक करते हैं, तो कस्टमर हैप्पी, आपका इनोवेशन विल बी रेडी और आपका मार्केट कैप्चर. ओके. देन स्किन क्राफ्ट, ये कंपनी है जो पर्सनलाइज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सेल करती है. मान लीजिए कि देयर इज अ तनु, सम गर्ल इज हियर, एंड ये तनु का लिए प्रोडक्ट है. तनु की स्किन जो है वो कुछ ऑयली है, उसको कुछ पर्टिकुलर केमिकल से एलर्जी है, तो इसलिए वो केमिकल इसके अंदर नहीं डाले हुए हैं, वो पार्ट नहीं डाला हुआ है. और तनु को शायद ऑरेंज फ्लेवर पसंद है, तो ऑरेंज फ्लेवर में पूरा कस्टमाइज किया हुआ है. ओके, दैट इज पर्सनलाइज कॉस्मेटिक क्रीम. Then personalized medicines, you can personalize the medicines by the particular gene. That is some kind of technical. I'm not going there. Then T is for transport. जो existing idea वर्ल्ड के किसी कोने में चल गया है, उसको आप या तो अपनी कंट्री में ले आइए, या फिर आपकी ही कंट्री में अगर कोई आइडिया चल गया है तो उसका पूरा कस्टमर सेगमेंट चेंज कर दीजिए. कैसे? फ्लिपकार्ट, अमेजोन चल रहा था, अलीबाबा चल रहा था, फ्लिपकार्ट इंडिया में आया सेम कॉन्सेप्ट लेके, और अब ये डायरेक्टली अमेजोन जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ई कॉमर्स है, या फिर अलीबाबा है, उसको डायरेक्टली कम्पीट करता है इंडिया में. एयर एशिया, जो जर्मन एयरलाइंस थी, उन लोगों ने चीप फेयर स्टार्ट किया. उसी के कॉन्सेप्ट को लेके एयर एशिया ने एशियन कंट्रीज में चीप फेयर स्टार्ट किया, और एयर एशिया जो बाकी जो जेट एयरवेज थी या फिर दूसरी एयरलाइंस थी, उनके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा ब्रांड स्टैब्लिश किया. मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए मास्टर शेफ इंडिया में लॉन्च किया, और अच्छे रिस्पांस के साथ में ये जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया गया. ओके. तो अभी तक हम लोगों ने देखे कि कौन कौन से डिस्ट्रप्टिव आइडियाज या डिस्ट्रप्ट किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डी टू टी. ओके. नाउ वी हैव नेक्स्ट टेक्निक्स, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. ओके. ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो रॉ आइडियाज को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाती है. इसमें किसी भी तरह का आइडिया को कोई जजमेंट नहीं दिया जाता है. ओके. आपको आइडिया आया, ओके, वी आर गोइंग टू राइट. किसी भी टाइप का कोई जजमेंट आइडिया को सुनने के पहले या फिर आइडिया को इवेल्युएट करने के पहले कोई जजमेंट नहीं दिया जाता है. ठीक है. इसमें हम रॉ आइडियाज को कलेक्ट करते हैं, और उसमें जितने वाइल्ड आइडियाज हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है. वाइल्ड आइडिया मीन्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहे हों, उस टाइप के आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है. ओके. इस टेक्निक के 4 सिंपल रूल्स हैं. क्वांटिटी ओवर क्वालिटी. इसमें उल्टा चलता है. हम लोग क्या बात करते हैं? क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. हम लोग हमेशा क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, बट नहीं. ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको चाहिए क्वांटिटी ओवर क्वालिटी. हमें कोई मतलब नहीं है आपका आइडिया का क्या क्वालिटी है. हमें कोई मतलब नहीं है कि आपका आइडिया कितना सक्सेस है, कितना फेल है. हमें अभी आइडिया की रिक्वायरमेंट है. we want our bucket full. okay, then no criticism. जब तक आप आइडिया को सुनेंगे नहीं, जब तक आप आइडिया को इवेल्युएट नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी पर्सन के आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे. कंप्लीट लो. जो भी आइडिया हमारे पास आएगा उसको हम रिटर्न कम्युनिकेशन में लॉक करेंगे. इंस्पायर ईच अदर. कोई एक आइडिया किसी एक पर्सन के पास आ रहा है, उससे रिलेटेड आइडिया या फिर उसको और इंस्पायर करने के लिए हम लोग उससे रिलेटेड आइडियाज जनरेट करेंगे. ओके. दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स आर वेरी मच यूजफुल इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और if we are talking the research and development systems, in which we start the topic, if we want to start a business,
So what kind of business? Just put your ideas in some basket, or you have to stick your idea on the sticky notes, और इस टाइप से बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जा सकती है इसमें. ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक जनरलाइज टर्म है जिसके अंदर दूसरे बहुत सारे टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे मैं आज बात करने वाला हूँ माइंड मैपिंग की. ओके, माइंड मैपिंग कॉन्सेप्ट, ऑलरेडी हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है, और इसके बारे में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं हमारे पास, जो कि टोनी बुजान ने इंट्रोड्यूस किया था 1970s में. सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसको सेंटर में रखिए, और ब्रांच वाइज आपके जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं उनको ब्रांच वाइज सेग्रीगेट करते जाइए. आई हैव एक्टिविटी अबाउट दिस माइंड मैप. अगर हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे अभी. इसमें क्या होता है, मैं आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन टू यू. हाँ, अब आपका एक्टिवेशन चाहिए, अब आपका पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे. आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्टिविटी ऑन माइंड मैपिंग. So here is mind mapping tool. Okay, please once confirm me your mind mapping tool is open or not. Yes, sir, it is open. Yes. So अगर आपको कोई भी किसी भी आइडिया के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, या फिर आपको बहुत सारे आइडियाज जनरेट करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर, तो आप इस तरह से माइंड मैपिंग टूल स्टार्ट कर सकते हैं. मैंने लिया है न्यू माइंड मैप. ओके, और इसमें हमने लिया है माई न्यू माइंड मैप वेबसाइट. ओके, ये फ्री है, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. इसमें एक सेंट्रल आइडिया जो है उसको सेंटर में रखना होता है, और बाकी सारे पार्ट्स जो है इसमें सब डिवाइडेड होंगे. ओके, फॉर द एग्जांपल, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ चाय टपरी. ओके, चाय टपरी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि शायद मुझसे जुड़े जो लोग हैं वो समझते होंगे, आई एम अ चाय लवर. ओके, आई वांट टू स्टार्ट अ चाय टपरी. सो अब आपके पार्टिसिपेशन के हिसाब से आप बताते जाइए कि मुझे किन किन पार्ट्स पे फोकस करना होगा. अगर मैं एक चाय टपरी ओपन करना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या फोकस करना होगा चाय की टपरी बनाने के लिए, या फिर चाय की टपरी स्टार्ट करने के लिए. यस, हैंड रेज हो रहे हैं, कोई अनम्यूट कर दे जाइए ना. सर लोकेशन. लोकेशन, वेरी गुड. लोकेशन. Then what will be the next? Quality of tea leaf. Quality of tea leaf. Okay, that means the raw material, I think. Raw material. Then what we can consider? Sir, taste. Taste, that will be the raw material type. उसके अंदर हम लोग इसको फॉर्मेट कर लेंगे. और क्या एस्पेक्ट हो सकता है हमें, एक तो चाय की टपरी खोलना है जिसमें लोकेशन देखना है हम लोगों को, और रॉ मटेरियल देखना है, रॉ मटेरियल कहाँ से परचेस करेंगे, या फिर किस टाइप का रॉ मटेरियल परचेस करेंगे. Sir, cost. कॉस्ट मतलब मुझे एक ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस जो है वो कितना बड़ा है, कितना छोटा रहेगा. ओके, तो मैं इसको देख लेता हूँ, हाउ मच कॉस्ट दैट विल कॉस्ट. ओके, सर मिल्क की क्वालिटी. वो फिर रॉ मटेरियल में कंसीडर करेंगे. मिल्क क्वालिटी. सर ब्रांड एडवर्टाइजमेंट. Sir, marketing. मार्केटिंग. ओके, मार्केटिंग. एडवर्टाइजमेंट. सर ब्रांड नेम. Sir, infrastructure of tapri. ओके, मैं टाइप बोल दूँ इसको, टाइप ऑफ टपरी. इंफ्रास्ट्रक्चर मींस टाइप ऑफ टपरी. और क्या हो सकता है? इंटीरियर डिजाइन. इंटीरियर डिजाइन. ओके, इंटीरियर डिजाइन मैंने इसमें पार्ट डाल दिया है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा इनोवेटिव टाइप का हूँ तो मैं शायद अभी जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, कौन सा चल रहा है इंदौर में, चाय सुट्टा बार. आई थिंक आई एम राइट. तो मैं उस टाइप से अपना इंटीरियर डिजाइन कर सकता हूँ, या फिर अपने प्रोडक्ट में बहुत सारे वेरिएशंस कर सकता हूँ. यस सर. फायदा मुझे भी है, फायदा आपको भी है. यस. ठीक है, मुझे क्या फायदा? एडवर्टाइजमेंट. क्या बोल रहे हैं सर? एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट. मार्केटिंग में मैं एडवर्टाइज कर सकता हूँ कि मेरे पास इस टाइप के टीज अवेलेबल हैं. एडवर्टाइज. ओके, और कोई जो अब ये मान लीजिए कि हमारे पास इतने एस्पेक्ट हैं. सर मार्केट साइज. ओके, मार्केट साइज में मैं बात करूंगा कॉस्ट की. कॉस्ट से रिलेट करूंगा मार्केट साइज को. तो सर वो तो रेवेन्यू से रिलेट होगा ना सर. किससे? रेवेन्यू से. कॉस्ट से. मैं मार्केट साइज कितना कैप्चर करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे पास कितना
अवेलेबल है, मेरे पास कैपिटल कितना अवेलेबल है वो भी रिक्वायर्ड है। ओके सर। दैट विल बी वेरी पर्सन टू पर्सन। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं अगर कुछ बताऊंगा तो आपके अकॉर्डिंग अलग रहेंगी, बट शायद आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक मैं टर्म आज आपसे डिस्कस करूंगा कि आइडियाज कम इंस्टेंटली एंड डिसअपियर इंस्टेंटली। क्या बोल रहा हूँ मैं? आइडियाज बहुत इंस्टेंटली आते हैं और बहुत इंस्टेंटली डिसअपियर भी हो जाते हैं। You have to write this kind of method, you have to produce this kind of method to write your ideas or to think about that particular topic. माइंड मैपिंग, माइंड को हम लोग पूरा मैप कर देंगे यहाँ पे, उसके बाद में कोई पॉइंट ऐसा नहीं बच जाएगा जिसके बारे में आपने सोचा ना हो। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा माइंड मैपिंग कॉन्सेप्ट, और अच्छा भी लगा होगा। अगेन माइंड मैपिंग के बाद में एक और टूल आता है जिसको हम लोग 5 Why मेथड कहते हैं। 5 Why मेथड्स अगेन प्रूवन टेक्निक जो कि साकाची टोयोटा ने दिया था, टोयोटा प्रोडक्शन कंपनी ने दिया था। 5 Why टेक्निक्स के अंदर, सॉरी 5 Why टेक्निक्स के अंदर, इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग और इफ यू वांट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सो यू हैव टू आस्क 5 टाइम व्हाइस। 5 बार क्वेश्चन कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप रेड लाइट पे, प्रॉब्लम है कि आप रेड लाइट से क्रॉस किए हैं, रेड लाइट को आपने रेन किया है, मतलब सिग्नल ब्रेक किया है। क्यों सिग्नल ब्रेक किया? बिकॉज वाई, फर्स्ट वाई लेट फॉर वर्क, आप काम पे जाने के लिए लेट हो रहे थे। दूसरा, आप लेट उठे हैं। आप क्यों लेट उठे हैं? क्योंकि अलार्म क्लॉक ब्रेक हो गया था। अलार्म क्लॉक क्यों ब्रेक हो गया था? क्योंकि आपने चेक नहीं किया कि ये पहले से काम कर रहे थे, नहीं कर रहा था। और क्यों चेक नहीं कर रहा है? क्योंकि भूल गए थे। ओके, अब ये आपका रूट कॉज निकला है, दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। फॉरगॉट टू डू इट लास्ट नाइट, आपने लास्ट टाइम पे चेक ही नहीं किया था कि अलार्म क्लॉक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपने ये प्रॉब्लम को एक बार नोटिस कर लिया है तो आप इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करके आपका जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, दिस इज आल्सो वेरी very interesting and proven techniques which is worked in corporate worlds. उसके अलावा कुछ टेक्निक्स और भी हैं, जैसे इशिकावा टेक्निक्स है, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन टेक्निक्स है, देन बहुत सारे डायग्राम्स, कॉज इफेक्टिव डायग्राम्स वगैरह हैं, वो हम लोग आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने स्लाइड्स आपको शेयर किया है। अब हम लोग बात कर चुके हैं टेक्निक्स के बारे में, और हम लोगों ने माइंड मैपिंग का एक्टिविटी भी देखा। अब हम लोगों को क्या पता करना है, जैसे मैं स्टार्टिंग की फर्स्ट स्लाइड में बोला था, यू मे हैव 1000 आइडियाज बट which one is potential, which one has potential, कौन सा आइडिया आपके लिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। कोट लिखा हुआ है, एक आइडिया एक सीड की तरह काम करता है जो कि या तो ब्लूम करेगा या नहीं करेगा, बट अपॉर्चुनिटी एक फेवरेबल कंडीशन की तरह काम करती है जिसमें प्रॉपर वाटर रिसोर्स, फेवरेबल कंडीशन होगी जो कि आपके सीड को ग्रो करने में हेल्प करेगी। ओके, सो अपॉर्चुनिटी इज बेटर देन आइडियाज, ये यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है। ठीक है, सारे आइडियाज अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, बट कुछ आइडियाज अपॉर्चुनिटी होते हैं, उन्हीं आइडिया पे आपको फोकस करना है। तो वो आइडियाज जो हम लोगों को फोकस करना है वो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? फॉर दैट वी हैव द आइडिया इवेल्युएशन मैट्रिक्स। ओके, कोट कर रहे हैं, द थॉट और द आइडिया फैक्ट्री, ब्रेन जिसको हम लोग थॉट और द आइडिया फैक्ट्री कह रहे हैं, और थॉट इक्वल टू आइडिया वी आर कंसिडरिंग। ठीक है, और हमारे पास हजारों आइडियाज हो सकते हैं। हो सकता है कि आप इस सेशन के बाद मोटिवेट हो जाएं और बहुत सारे आइडियाज जनरेट भी कर लें। ओके, बट उनको इवेल्युएट करने के पहले आप एक भी आइडिया पे वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इवेल्युएट कैसे करेंगे हम लोग? वी हैव द मैट्रिक्स। अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं जिनको हम फिल्टर करने के बाद में हाई इम्पैक्ट और लो एफर्ट में कंसीडर करते हैं, ऐसे आइडियाज जो बिल्कुल मार्केट में धूम मचा देंगे, मार्केट में उसका जिसका कोई कंपटीशन नहीं है, और जिन पे कम एफर्ट करने के बाद में अक्सर सक्सेस हो जाते हैं, तो उनको आज के आज एग्जीक्यूट करना चाहिए। क्यों एग्जीक्यूट करना चाहिए? इसके पीछे एक फिलोसफी है कि आपके साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता है
कि हम सोचते हैं कि यार शायद इस जगह पे शॉप ओपन हो जाए तो हम लोग बहुत अच्छा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, और थोड़े ही टाइम बाद में आप देखेंगे कि वहाँ पे शॉप खुल गई होगी। ठीक है, कोई आपके लिए वेट नहीं कर रहा है। कैसे हुआ ये? इसके लिए एक फिलोसफी वर्क करता है कि वर्ल्ड में 7 लोग एक जैसा सोचते हैं, और वो 7 लोग इंडिया में भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने सोचा और शॉप ओपन हो गई। तो उसके लिए जो आइडियाज आपको हाई इम्पैक्ट और लो एफर्ट के लगते हैं उनको तुरंत एग्जीक्यूट कीजिए। जिसमें हाई इम्पैक्ट और हाई एफर्ट लगता है उसके लिए पहले इम्पैक्ट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कीजिए, लेस एफर्ट में करने की कोशिश कीजिए। ऐसे आइडियाज जो कि लो इम्पैक्ट के हैं और जिनके अंदर कुछ ना कुछ रिस्क है, लो एफर्ट लग रहा है और लो इम्पैक्ट है। तो अगर आपने इसमें अगर आप इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ा सकते हैं तो इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और ऐसे आइडिया जिसमें लो इम्पैक्ट है और हाई एफर्ट है, ड्रॉप दैट आइडिया। ओके, सिंपली आप ऐसे आइडिया को फोकस ही ना करें, भूल जाइए कि ऐसा आपके दिमाग में कोई आइडिया भी आया था। ओके, इसके लिए एक टेक्निक यूज करते हैं, आइडिया वैल्यूएशन मैट्रिक्स। आइडिया वैल्यूएशन मैट्रिक्स में इस टाइप का एक डायग्राम है। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे आइडिया वैल्यूएशन मैट्रिक्स, आपको इस टाइप का एक्सेल शीट जनरेट हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, इफ यू आर अलाउइंग, मैं एक और आपको स्क्रीन शेयर करके बता सकता हूँ कि आइडिया वैल्यूएशन मैट्रिक्स कैसे काम करता है, बट शायद टाइम परमिट नहीं करेगा, इसलिए हम लोग आगे चलते हैं अभी। ठीक है, मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ कैसे काम करेगा ये। आपके पास आइडियाज हैं, आइडिया ए बी सी डी ई, 5 आइडियाज हैं आपके पास। ओके, इन आइडियाज के क्राइटेरिया कोफिशिएंट आपको डिसाइड करना है 1 to 5। टाइम, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप इसको 5 कंसिडर कीजिए। अगर आपके पास कॉस्ट बहुत सारा है तो 5 कंसिडर कीजिए। पोटेंशियल इम्पैक्ट, अगर चाय की टपरी की ही बात करें हम लोग तो पोटेंशियल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा, 3 कंसिडर कीजिए। बिजनेस क्रिटिकल ज़्यादा नहीं है इसलिए 2 कंसिडर कीजिए। लिंक्ड टू स्ट्रेटेजिक गोल, मेरे स्ट्रेटेजिक गोल से लिंक्ड है, क्या मैं हमेशा चाय की टपरी ही चलाना चाहता था और क्या आगे भी मैं इसमें अच्छे इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, यस, तो इसको 5 कंसिडर कीजिए। उसके बेसिस पे आइडिया ए को आउट ऑफ 5 मार्क कीजिए इन सारे पैरामीटर्स पे। आइडिया बी को आउट ऑफ 5 मार्क्स कीजिए, आइडिया सी को आउट ऑफ 5 मार्क्स कीजिए। देन आइडिया ए का वेटेड रेटिंग में जो आपका इम्पैक्ट है, क्राइटेरिया कोफिशिएंट है, इससे आइडिया ए का इम्पैक्ट वेटेड रेटिंग निकालिए बाय मल्टीप्लाइंग दिस। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 to 10 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वेटेड रेटिंग निकालिए। और जिस आइडिया का सबसे ज्यादा टोटल रेटिंग आएगा इन 5 आइडियाज में से, जिस आइडिया का सबसे ज्यादा टोटल रेटिंग आएगा, दैट इज योर पोटेंशियल आइडिया। ओके, अब आप पूछेंगे कि इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है, हमको तो सोचने में ही पता चल जाता है कि कौन सा आइडिया पोटेंशियल है कौन सा नहीं है। नहीं, ये जो एक्सरसाइज है ये 3 मोड में हो सकती है। इंडिविजुअल इवैल्यूएशन, मतलब आप खुद करके देख लीजिए। एक्सपर्ट ग्रुप इवैल्यूएशन, एक्सपर्ट से करवाइए। और क्राउड सोर्स इवैल्यूएशन, क्राउड सोर्स मींस इसको आप क्राउड में रिलीज कर दीजिए एक फॉर्म, एट द फॉर्म ऑफ जिसको हम लोग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, या फिर किसी से केस स्टडीज टाइप में हम लोग करवा सकते हैं, या फिर जैसे यूट्यूब पे आजकल आते हैं केस स्टडीज की, आप विच टाइप ऑफ सोप यू आर यूजिंग, है ना, इस टाइप से हम लोग इसको क्राउड इवैल्यूएशंस भी दे सकते हैं। देन नेक्स्ट the idea, one second, okay, the idea film। okay, ये सारी बातें हो गई हम लोगों की आइडिया फैक्ट्री, आइडियाज हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, इनोवेशन कैसे करेंगे। बट अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे करेंगे। अभी तक ये बात कर ली कि करेंगे, अभी तक हम लोग मोटिवेट भी हो गए, बट प्रॉब्लम आएगी कैसे करेंगे। तो आपको मोटिवेट करने के लिए एक थॉट लिखा है, या यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है कि हम लोगों को एक न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग, ओल्ड स्टडी कहता था 50 to 70,000 पर डे आते हैं हमको, 50 से 70,000 थॉट्स पर डे आते हैं। बट न्यू स्टडी सजेस्ट कर रहा है 6,200 थॉट पर डे आते हैं, जो कि काफ़ी कम है देखा जाए तो 50 to 70,000 से। और इसमें भी मोस्ट थॉट्स आर नेगेटिव। मेरे साथ ऐसा ना हो जाए ये पंखा सर पे ना गिर जाए, ये बस छोड़ के ना चली जाए, और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। बट कुछ प्रॉब्लम सॉल्वर थॉट्स भी आते हैं जो कि एक पोटेंशियल आइडिया में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उन प्रॉब्लम सॉल्वर पोटेंशियल आइडियाज को राइट डाउन करके रखना है। ओके, बिना सोचे समझे। आप मत सोचिए कि ये लिखने से
क्या होगा, या फिर ये आपके काम का नहीं है, ये आप अभी फिलहाल के लिए मत सोचिए, सिर्फ नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने कंफर्ट जोन में ही जीना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू इनोवेट, वी डोंट वांट टू चेंज अवर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज नहीं करना चाहते हैं, हम इनोवेटर नहीं बनना चाहते हैं। इनोवेटर सुनना बहुत अच्छा लगेगा, इनोवेशन देखना बहुत अच्छा लगेगा, यूट्यूब पे भर भर के हम लोग टेडेक्स के वीडियो देखेंगे, डिस्कवरी के वीडियोस देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। फलाना कंपनी ने उड़ने वाला फ़ोन बना लिया है, फलाना कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार बना ली है, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, बट वी डोंट वांट टू इनोवेट। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज वी हैव अ माइंडसेट, वी आर रेजिस्टिंग टू चेंज। ओके, इसको मैंने कोट किया है बाय रेफरेंस ऑफ हु मूव्ड माय चीज, अ बुक बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। क्या स्टोरी है इस बुक में? इस बुक में स्टोरी शायद बहुत लोगों ने सुना भी हो। अगर आप लोगों को इस बुक को पढ़ने का टाइम नहीं है तो डायरेक्टली यूट्यूब पर जाइए और इसे डालिए हु मूव्ड माय चीज, उसका स्टोरी पूरा वीडियो में है, 7 मिनट 10 मिनट वीडियो में, ठीक है। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर हैं, हैम, हॉ, स्नीफ, स्करी। हैम जो है, जो चेंज बिल्कुल चेंज नहीं चाहता है, ही इज रेस्ट्रिक्टेड टू चेंज। हॉ चेंज होना चाहता है, बट कब चेंज होना चाहता है? जब इसकी चीज को कोई इसकी कंफर्ट जोन से हटा दे, इसको कोई अनकंफर्ट करेगा तो चेंज होना चाहेगा। स्निफ जो कि चेंज को स्मेल कर लेता है, ओके, ये चेंज को स्मेल कर लेता है, इसको पता चल जाता है पहले से कि चेंज होने वाला है, या फिर चेंज होने के लिए एग्रेसिव रहता है। स्करी जो स्निफ के कहने पर तुरंत एक्शन लेता है। ओके, तो स्टोरी में कुछ ऐसा होता है, ये एक प्लेस पे रहते हैं, एक प्लेस पे ही इनको सारा चीज अवेलेबल होता है। चीज एक बार खत्म हो जाता है, हैम और हा वहीं पे रुक के वेट करते हैं कि दूसरे बार कोई और चीज उनके पास रख जाएगा, और स्नीफ और स्करी अपना दूसरा चीज दूसरे एरिया में जाके सर्च कर लेते हैं। हॉ को समझ में आता है कि हैम के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हैम जो है हमेशा चेंज को रेस्ट्रिक्ट करेगा, बाहर आने में डरेगा, अपने एरिया से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में डरेगा। हॉ भी चेंज होता है, और ये तीनों लोग कंफर्ट जोन से बाहर आके नई चीज को सर्च करते हैं, डिस्कवर करते हैं, और हैम वहीं पर रह के पुरानी चीज का ही वेट करता रह जाता है कि कोई आएगा और पुरानी जगह पे ही चीज फिर से रख के जाएगा। ओके, तो चेंज बहुत बड़ी चीज है, और चीज बहुत बड़ा चेंज है। ओके, ये चीज मैं अपना हिंदी वाला चीज बोल रहा था। तो चेंज जो है वो आपको करना तो पड़ेगा, इफ यू वांट चीज, ठीक है। देन नेक्स्ट जो फिलोसॉफी आती है, द राइडर एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। हमारा जो माइंड है वो 2 तरह से काम करता है, एक तो राइडर जो एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ है, और एक एलिफेंट खुद। जो एलिफेंट है वो बहुत इमोशनल है, राइडर जो है रैशनल है, ये रैशनली बात करता है। एलिफेंट खुद को एक्सपीरियंस करता है, राइडर जो है वो रिमेंबर करता है खुद को। एलिफेंट फास्ट है, राइडर स्लो है। एलिफेंट जो है वो डिलीवर करता है, राइडर डिसीजन लेता है। अब एग्जांपल के लिए मैं ये सारी बातें नहीं करूं, जब आप रात में सुबह 5:30 बजे या 6 बजे उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, तो वो आप राइडर माइंड से सोचते हैं, ठीक है। अब शायद इस बात को आप अच्छे से समझ पाए। जब आप मॉर्निंग में उठने के लिए अलार्म सेट करते हैं तो आप राइडर माइंड से सोचते हैं, सुबह उठेंगे, जॉगिंग पे जाएंगे, वगैरह वगैरह जो भी है। और जब सुबह उठ के अलार्म बजता है, और जब आप उसको स्नूज पे डाल देते हैं, जब आप अलार्म को बंद कर देते हैं और फिर से सो जाते हैं, तो आप एलिफेंट माइंड से सोच रहे होते हैं। ओके, दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दिस। आपको क्या करना है? राइडर माइंड को डायरेक्ट करना है, ठीक है। राइडर माइंड को डायरेक्ट करना बहुत ईजी है। एलिफेंट माइंड को मोटिवेट करना है, और एलिफेंट माइंड को मोटिवेट करने के लिए सिंपल टेक्निक है, फिलोसॉफी और इमोशनल बिहेवियर। इमोशनली अपने आप को मोटिवेट कीजिए, ठीक है। और इन दोनों को मोटिवेट करने के बाद में आपका जो रास्ता है, आपका जो पाथ है, उसको शेप कर दीजिए। जितनी प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हो, प्रॉब्लम्स को बाद में देखिएगा, पहले अपने रास्ते को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अगर इतनी चीजें अगर आप करते हैं तो यू कैन ऑल्सो थिंक क्रिटिकली, और आप भी एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह सोच सकते हैं। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे माइंड के साथ में, वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेग मेजर्स एंड लीड मेजर्स। लेग मेजर्स और लीड मेजर्स क्या होते हैं? लेग मेजर्स होंगे कि आई वांट टू इंप्रूव समथिंग एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, ठीक है। आई वांट टू कंट्रीब्यूट एंड आई विल कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी।
किसी भी मैनर में अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करूंगा, बट कब करेंगे, कैसे करेंगे, नो आइडिया। ओके, लीड मेजर्स होंगे। लीड मेजर्स में हम लोग बात करेंगे छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में कि सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं एक स्टूडेंट को एडुकेट करूंगा, या फिर ये जो आइडिया जनरेशन वाला पार्ट है मैं एक स्टूडेंट को बताऊंगा। दैट इज लीड मेजर्स, जो कि बहुत इजीली है और बहुत ही जल्दी फिजिबल भी हो जाता है। ओके, और ये सारी चीजें होने के बाद में हमारे पास सिचुएशन आती है ये वाली, किसी को अगर जरूरत है हमारे आइडिया या इनोवेशन की, हमारे थॉट्स की, तो ये लोग बोलते हैं सॉरी, नो थैंक्स, वी आर टू बिजी फॉर इन आवर वर्क। ठीक है, दे है, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो आपके आइडियाज और इनोवेशन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, बट बाद में यही लोग फिर आपसे आपके आइडियाज के बारे में बात भी करेंगे। फिलहाल के लिए दे आर वेरी बिजी, बट बाद में जब इन लोगों को, जब आपके आइडिया या फिर इनोवेशन का एक्सेप्टेंस आएगा कहीं से, तो ये आप ही लोगों से आपके इनोवेशन की बात भी करेंगे। At the last point, I want to motivate yourself with some path makers. Okay, जिसमें मैं कोट कर रहा हूँ थॉमस एडिसन को और इनकी इन्वेशन फैक्ट्री को। इन्होंने एक सिंपल सा फंडा यूज किया कि इनको हर 10 दिन में एक माइनर इन्वेंशन चाहिए था। अपनी टीम से बोल दिया कि मुझे हर 10 दिन में एक माइनर इन्वेंशन चाहिए और 6 मंथ में एक बड़ा इन्वेंशन चाहिए, वो कुछ भी हो मुझे नहीं पता, फिक्स टाइम। अपनी आइडिया फैक्ट्री में लॉन्च कर दिया इन्होंने ये फंडा कि मुझे 10 दिन में एक माइनर इन्वेंशन दे दो और 6 मंथ में एक बिग इन्वेंशन दे दो। जो वहां पे वर्क फोर्स था उनके लिए काफी बड़ा टास्क नहीं था ये। 10 दिन में एक माइनर इन्वेंशन ओके हो जाएगा, बट 6 मंथ में एक बिग इन्वेंशन ओके हो जाएगा। जब इन लोगों ने ये स्टार्ट किया तो ये 18 पेटेंट्स पर ईयर के अकॉर्डिंग 1093 पेटेंट्स अवार्ड हुए। ठीक है, आज भी जो थॉमस एडिशन इनोवेशन फैक्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा पेटेंट्स के रिकॉर्ड हैं 1093। इसको ब्रेक करने वाले आगे कुछ लोग और हैं जो मैं आपको बताता हूँ। कुछ अजीब लोग जो इस टाइप की थिंकिंग रखते हैं, जिसमें से एक है योशिरो नाकामात्सु, डॉक्टर नाकामाट्स। ये जापानीज इन्वेंटर है, इनके पास टोटल पेटेंट है 3572। ओके, इस डॉक्टर नाकामाट्स, ठीक है, दिखने में भी थोड़े से नॉटी नेचर के हैं और इनके टेक्निक्स भी बड़ी अजीब अजीब हैं जिनके थ्रू ये आइडियाज और इनोवेशन को जनरेट करते हैं। 3572 पेटेंट्स के साथ में ये लीड कर रहे हैं चाइना को। ठीक है, तो पहली इनकी टेक्निक है सोचने के लिए क्या करते हैं, टेक्निक्स क्या क्या यूज कर सकते हैं। अंडर वाटर टेक्निक, अंडर वाटर थिंकिंग में ये स्विमिंग पूल में डाइव करते हैं और एक अपना इन्होंने खुद से अपना वाटर प्रूफ पैड और पेंसिल बनाया हुआ है, उसको लेके स्विमिंग पूल में डाइव करते हैं और जब तक इनको एक आइडिया नहीं आ जाता तब तक ये डाइव करते रहता है। जैसे ही इनको कोई आइडिया आया या फिर जैसे ही कोई इनके माइंड में कुछ सजेशन आया तो ये तुरंत बाहर आके अपने आइडियाज को एक अपने जो भी नोटपैड वगैरह में उसको फेयर करते हैं और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करते हैं। दूसरा इनका टेक्निक है कि ये इन्होंने एक रूम बनाया हुआ है जो कि गोल्ड प्लेटेड है। ओके, गोल्ड रूम। इस गोल्ड रूम में बैठ जाते हैं, तब तक बाहर नहीं आते हैं जब तक कि कोई एक बेस्ट आइडिया या बेटर आइडिया इनसे जनरेट नहीं हो जाता है। गोल्ड प्लेटेड क्यों है, इसके पीछे रीजन बताते हैं कि जो गोल्ड मटेरियल है वो सारी टीवी फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी और सारी फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है ताकि अपना माइंड जो है वो वर्क करता है फुल एंथुजियाज्म में और फुल कैपेसिटी में। ओके, ये डॉक्टर नाकामाट्स की कैपेसिटीज हैं और ये उनके टोटल पैटर्न्स हैं। ठीक है, at the last I want to conclude my webinar with think critically, no need to overthink। means अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही स्पेसिफाइड हो जाइए। इस टाइप के प्रोडक्ट ना तो आपके काम के हैं ना आपके कस्टमर के काम के हैं। इस टाइप के इनोवेशन किसी को नहीं चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा क्रिटिकली नहीं सोचिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट को कॉपी कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको आप कॉपी कीजिए और मॉडिफाई कीजिए, बट मान लीजिए कि दिस इज द एप्पल प्रोडक्ट जो वन टच काम करता है, ये गूगल प्रोडक्ट है जिसमें हमें सर्च करना पड़ता है और आपने बनाया है इन दोनों को मिला के, इन दोनों के इंस्पायर होके अपना खुद का ऐप जिसमें इतने सारे कॉम्प्लिकेशन है, तब जाके कोई ऐप ओपन होगा या तब जाके आपका मोबाइल वर्क करने लगेगा या फिर सिस्टम वर्क करने लगेगा। कॉपी कीजिए,
बट सिंप्लीफाई भी करिए। एक और है कि आप अगर ये दोनों जैसे पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये पेरेंट्स मान लीजिए कि आप इनोवेटर्स हैं, ओके, और यहाँ पे जो बच्चा है ये आपका कस्टमर है, तो आप डिसाइड मत कीजिए कि आपके कस्टमर को क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा। अगर आपको आपका आइडिया बहुत अच्छा लगता है तो भी आपको आपके कस्टमर का, एक्सपर्ट्स का और जो आपकी टीम मेंबर है उनसे सबसे सजेशन लेना जरूरी है। हो सकता है कि ये अगर एक प्रोडक्ट है तो ये आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा हो बट कस्टमर के नज़र से अगर आप देखोगे तो इतना अट्रैक्टिव ना हो, तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। एंड एट द लास्ट हम स्टार्ट अभी कर सकते हैं बट वी हैव टू वेरी पेशेंस अबाउट आवर आइडिया, अबाउट आवर इनोवेशंस। ये स्लाइड कह रही है कि किस इनोवेशन को, कौन से इनोवेशन को कितना टाइम लगा था 50 मिलियन यूजर पहुंचने में। एरोप्लेन 68 ईयर्स। वहीं पे अगर हम लोग देखें तो पॉकीमोन गो जो कि लास्ट ईयर वीडियो गेम लॉन्च हुआ था, ऐप लॉन्च हुआ था एज ए मोबाइल गेम, इसको सिर्फ 19 डेज लगे थे 50 मिलियंस पहुंचने में। कोई रीजन बता सकता है कि व्हाई पोकेमोन गो रीच्ड 50 million in 90s day and aeroplanes, airlines and motorcycles, automobiles are 62 years takes to gain the 50 million users? कोई बता सकता है इसका रीजन? मुस्कान जैन, प्लीज अनम्यूट। सर कॉस्ट के बेसिस पे। वेरी गुड, कॉस्ट के बेसिस पे। और दूसरा कॉस्ट के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो इसमें अवेलेबिलिटी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मींस पोकेमोन गो आपके पास, सबके पास स्प्रेडेबल अमाउंट में अवेलेबल था, ठीक है, एक क्लिक से कोई भी इस गेम को यूज कर सकता था, कोई भी इस गेम को डाउनलोड कर सकता था। बट वहीं पे एयरलाइंस, अगर आपके पास पैसा है तो भी हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जा रहा, हर एक कस्टमर के पास नहीं पहुंच सकता था। वैसे ही 14 इयर्स कंप्यूटर को लगे, 12 इयर्स सेल फोन्स को लगे एंड बहुत सारी चीजें। फेसबुक में भी 3 इयर्स लगे थे, ट्विटर में 2 इयर्स लगे थे एंड बहुत सारी चीजें। इस स्लाइड का टेक थ्रू यही रहेगा कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो जरूरी नहीं है कि वो 90 डेज में 50 मिलियन पे जाएगा या 68 ईयर्स में जाएगा। दैट विल डिपेंड ऑन दी कैपेसिटी ऑफ योर आइडिया और कैपेसिटी ऑफ योर इनोवेशन। एट द लास्ट, Isaac Newton quote this, and I mentioned here, if I seen further than others, it is by standing upon the shoulder of giant. इसका मीनिंग मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने फोटोग्राफ्स लगाया हुआ है। अगर आपको कुछ दूर का दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आईसाइट काफी अच्छी है। इसका सिंपल मीनिंग है कि आप किसी के शोल्डर पे बैठे हैं, किसी जाइंट के शोल्डर पे बैठे हैं। मीनिंग ये हुआ कि हमारे जो एंसेस्टर्स हमारे लिए नॉलेज छोड़ गए हैं उसके बेसिस पे आज हम रोबोटिक सर्जरीज, चीप एयरलाइंस, टेस्ला की कार्स या फिर मून पे होम्स, ये सारी बातें कर रहे हैं। अगर हमारे एंसेस्टर हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ गए होते तो हम लोग इतना फर्दर नहीं देख पाते। ओके, अब आपका टाइम है कि आपको भी जाइंट बनना है। नाउ इज योर टर्न ना। आप अपने सक्सेसर्स को क्या देके जाएंगे और आप किस तरह के जाइंट बनेंगे ताकि आपके सक्सेसर आपसे ज्यादा फर्दर देख सकें। ओके, थैंक यू सो मच। There are some questions. Keshav Ramesh, okay, please. Sir, you can share this PPT. Yes, I will. Yes, sir. Okay. Any other questions? कोई suggestions देना चाहेंगे या फिर कोई किसी टाइप का कोई एग्जांपल कोट करना चाहेंगे जो कि डिस्टर्ब में आ रहा हो, माइंड मैपिंग में आ रहा हो? Okay, ma'am. I completed my webinar and I'm okay. Someone is here. Yes, ma'am. Hello. Very good evening, Saurabh sir. Good evening, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Good evening, one and all. It is wonderful session. With this, we know come to the end of this webinar. But before we close this webinar, it is time to acknowledge the efforts of all those who have contributed to this webinar. Idea generation is important not only for the startups, but in our daily routines as well. I hope all the participants definitely get benefit from this talk of idea generation. I sincerely thank Professor Saurabh Villor sir for such a wonderful webinar, which is very nicely and clearly explained each and every concepts. So definitely it will be going to beneficial for the participants, and this webinar will help you to start thinking in the new dimensions. So thank you very much, Saurabh sir, Thank for you, ma'am. making such a nice slides and giving such very much informations. I think the data statistics which you have covered in your slides, this is really giving new information to the participants. I also sincerely thank Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Sunil Kesumani, a renowned name in technical education, for his guidance and motivation that always help us to organize such events. His vision inspires us to work hard consistently. I also thank Registrar Dr. Pradyumna Yadav, Medicaps University, for all around support which lead to smooth conduction of this webinar. I thank Dr. Anjali Soni ma'am, who is always ready to start the webinars. I thank Professor Ramcharan Singh, Head ECEL, for all their support to organize this webinar. I also thank all the members of MIIC for their support for this webinar. I would like to thank member for supporting team, Mr. Surikant Soni sir, Ms. Amrita Mantri ma'am, and Mr. Gajen Singh for their back-end support as always. At last, I would like to thank all the participants who made this webinar successful by actively interacting with the speakers. I hope all of you have got a broader view of working with the idea generation, how it will help you to make or to lead your life in a better way. आइडिया जनरेशन इज नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर द स्टार्टअप. अगर आपको डेली रूटीन्स में भी अपने वर्क को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, हैसल फ्री यू वांट टू वर्क with a peaceful mind, then idea generation definitely help you out on your daily basis. With this, we come to the end of the webinar. So thank you, Professor Saurabh Villor, sir, once Thank you again. so much, ma'am. Thank you So for much, your such a ma'am. wonderful insights. Thank And thank you all, my dear participants. Thank you very much. I also thank to all the participants and my MIC team members, head in charge, MIC cell, Dr. Sarita Kansal ma'am, to give me this opportunity to share my view on the idea generation and innovation techniques. Thank you all. Thank you so much.